Good evening and welcome. You're watching Breaking Views with me, Sanket Upadhyay, the show where we get you all the views so that you get the complete picture. Now today we are going to talk about how the top court, the Supreme Court of India, is having to deal with utterances of a businessman Baba called Swami Ramdev. The doctors were up in arms. They went to the court and appealed against him that here is a Baba who openly preaches against medical science, allopathic medicines. This is from the time when he was launching Coronil, the capsule he claims cures coronavirus. And then later he produced a certificate by the Ayush Ministry to say that, see, here is proof that Coronil is now acceptable as medicine. The Ayush Ministry, though in its certificate or in its statement had said that this is a good substitute, beg your pardon, a complementary medicine. For instance, that if you are having your existing medicine, you can have this too. It's not an alternative. It is not a substitute. You can have this as a supportive medicine. But to then project his medicine as most important, and in an attempt to do that, ridicule doctors and ridicule medical science, that matter went to the court. So what has the court said? Let's put that on screen right now. The top court has pulled up Swami Ramdev. They say, can his own remedies guarantee cure? The Supreme Court's criticism of Ramdev's push for remedies at the cost of allopathy. A doctor's body had approached the court where they said that Ramdev's smear campaign has been launched against allopathy. And then the top court said, why is Ramdev blaming doctors for COVID? The court then says, and this is the Chief Justice of this country, popularize yoga. Don't criticize modern medicine. They've also told the center that restrain misleading advertisements. Now this is of course in the context of Mr. Ramdev. Now Ramdev's smear campaign against the doctors, let's quickly tell you what he has said in the past. So he said on the 24th of May 2021 that lakhs have died by taking allopathic medicines for COVID. He says allopathy is a stupid science. Stupid. Remdesivir, Faviflu, other allopathic drugs have failed in treating COVID. Doctors should not fall ill if allopathy is sarvagun sampann, all powerful. I am a doctor without degree, but with dignity and divinity. So these were the statements that kicked off, and then he made a very controversial comment where he said that doctors, who are these doctors, compared them to frogs by saying doctor, ter. All these statements are very publicly known. Now he also made a controversial claim by saying US President Joe Biden got infected by coronavirus even after vaccination. This is a failure of medical science. He launched a drug called Coronil, claimed that corona patients have been cured by it. Two leading ministers of this government were in that event. Now it's not just the Supreme Court. Earlier, the Delhi High Court also said, and this is the statement on the 17th of August 2022, they said, we're worried about the name of Ayurveda being maligned. Ramdev has named international leaders in his statement. We have relations with those countries and leaders. Such statements will affect our relations with foreign countries. So given this context, the entire context, and what the Supreme Court is saying and what the Delhi High Court is saying, are we to expect now that only courts can make sure that powerful people, business babas, dangerous ridicule of medical science can only be contained and stopped by the Supreme Court of this country? Doctors versus Ramdev battle. We are going to debate that right here on the show. I would like to welcome our guest. First, Dr. S.P. Singh, President of the Indian Medical Association, is now with us. Thank you very much, Dr. Singh, for joining us. We also have Dinesh Upadhyay, the former member of the Ayush Ministry, leader of the BJP. Thank you very much, Mr. Upadhyay. I remember you were in the Ayush Ministry, and I remember interviewing you when Baba Ramdev made these claims that we've got a certificate from the Ayush Ministry.
Acharya Manish is a Baba Ramdev supporter. Thank you very much for joining us. And Dr. K.V. Babu is an RTI activist. He filed an RTI and got the Uttarakhand drug inspectors to remove all the Patanjali advertisements. Thank you very much. Dr. S.P. Singh, I want to begin with you first. Do you feel that this entire battle between doctors and a Baba, between doctors and a man who wants to promote Ayurveda, was just not required? I mean, here are two medicine forms that can complement one another instead of fighting one another. Dr. Singh, can you hear me? Baba Ramdev accusing doctors allopathy. Dr. Ramdev accusing doctors of allopathy. We condemned him. He has done blunder. What he has told कि एलोपैथ डॉक्टर से पेशेंट मर जाता है, ऑक्सीजन से पेशेंट मर जाता है. दिस टाइप ऑफ वर्सन एट द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक he has done blunder and blunder, and he has made it coronal tablets, useless tablet, useless. There is no use of that tablet to take and to serve the people in corona. So Supreme Court has given very valuable verdict. I salute India Chief Justice Mr. N.V. Ramanna ji and Hima Kohli ji, which he has given very नहीं. तो डॉक्टर सिंह, आपका आरोप क्या है? आपका ये कहना है कि बाबा रामदेव ने ये सब किया अपनी कोरोनल दवाई बेचने के लिए, कि उन्होंने एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में लड़ाई लगवा दी? नहीं, एलोपैथ को बदनाम करने के लिए और कोरोनिल बेचने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया. ये बिजनेसमैन है, रामदेव बहुत बड़ा बिजनेसमैन है. एक कोलगेट बेचता है, तरह तरह का सामान बेचेगा, और कोरोनिल को प्रचार करके हजारों करोड़ रुपया कोरोनिल से इन्होंने कमाया, और जिससे कि पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ. नहीं डॉक्टर सिंह, दो चीजें हैं, दो चीजें. एक तो ये है कि वो बिजनेस कर रहे हैं और अपनी दवाई बेच रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर बेच रहे हैं. वो बिजनेस करने का हक है उनका. वो अगर कोई सर्टिफिकेट ले आए या कुछ ले आए, वो उसके बाद अपना बिजनेस करें. आपको लगता है कि उनके बिजनेस से वो उतनी दिक्कत नहीं है जितना उनका, आपका आरोप है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए एलोपैथी को नीचे दिखाना? नहीं, बिजनेस करें, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है. आप जो है आयुर्वेद से संबंधित कुछ काम करें, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को गाली दिया, कहा कि डॉक्टर ऑक्सीजन यूजलेस है, ऑक्सीजन से कोई फायदा नहीं है, एलोपैथ के डॉक्टरों से कोई फायदा नहीं है. आप जो है आप रखते हैं आईसीयू बेकार है. इस तरह के बात उन्होंने कहा, जिससे बहुत से पेशेंट कोरोना खाया और हॉस्पिटल नहीं गया, जिसके चलते बहुत से पेशेंट का जान चला गया. गरीब पेशेंट का जितना नुकसान किया है रामदेव, इस पर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए. ऐसा काम उन्होंने किया है, बहुत घृणित काम किया है. अपना बिजनेस करें, आप जिस तरह से एक्सरसाइज, लेकिन लोगों को भ्रमित ना करें. लेकिन एलोपैथ लोगों को भ्रमित ना करें, लोगों के डॉक्टर एलोपैथ के खिलाफ कुछ ना बोले. Okay, no, I think it is very important for the scientific temperament to be alive in the country, and to also promote that scientific temperament among people, that Ayurveda and Ayurvedic capsules. दिनेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं. आई रिमेंबर यू वर विद द आयुष मिनिस्ट्री, दिनेश जी, और एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वो आप ही की मंत्रालय का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि आपने उनकी दवाई अप्रूव कर दी, और उसके बाद फिर 2 मंत्री भी पहुंच गए उनके स्टेज पर. बाद में जब वो बारीकी से देखा गया चिट्ठी, तो उसमें लिखा था कि सपोर्टिव मेडिसिन. कहां सपोर्टिव और कहां असली दवाई? दरअसल इस राष्ट्र के अंदर रामदेव जी ने जो कार्य किया है योग के प्रचार प्रसार के लिए, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, आयुष के लिए, मैं भारत की तरफ से उनका धन्यवाद अदा करता हूं. और जितनी भी उन्होंने आज तक मेडिसिन बनाई है, जो उनकी दवाइयां हैं आयुर्वेद की, उनके पास सभी उन्होंने लाइसेंस भी प्राप्त किए हैं, अन्य जहाँ भी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट रहा है.
लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, भारत की पवित्र भूमि के ऊपर एलोपैथी का भी सम्मान है, आयुर्वेद का भी सम्मान है, नेचुरोपैथी का भी सम्मान है, सिद्धा चिकित्सा भी सम्मान है, होम्योपैथी का भी सम्मान है, यूनानी का भी सम्मान है। किसी भी पैथी को कम आंक के चलना वो किसी के भी लिए अच्छा नहीं है। और आयुर्वेद पुराना है, इस बात में कोई अति संयुक्ति नहीं है। और आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा, जो बच्चा पहले पैदा होता है वो बड़ा भाई कहलाया जाता है, जो बच्चा बाद में पैदा होता है वो छोटा भाई कहलाया जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई, जब से ये पृथ्वी बनी है, योग और नेचुरोपैथी और ये वनौषधि पूर्व काल से है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से फिर समय बदलता रहा, अलग अलग पैथियों का प्रचार प्रसार हुआ। दिनेश जी, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। एक आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हर साइंस का सम्मान होना चाहिए, आयुर्वेद का भी और एलोपैथ का भी, लेकिन यहाँ पर जब बाबा रामदेव ने खुलेआम डॉक्टरों से जंग छेड़ दी, एलोपैथी को बुरा भला कहने लगे, ये कहां तक सही है? कोरोनिल दवाई को उन्होंने बोला कि यही उपचार है, दिस इज द क्योर फॉर कोरोना। आपके टीवी चैनल पे कोरोनिल को लेकर के सबसे पहला बयान मेरा ही आया था, याद है मुझे, मेरे ही कार्यक्रम। संकेत उपाध्याय जी थे अल्टीमेट टीवी, जब मैं आयुष मंत्रालय का सदस्य भी था, क्योंकि कोरोनिल को वो इम्यूनिटी बूस्टर हो सकती है, सपोर्टिंग दवाई हो सकती है, जैसे कि गिलोय की एक औषधि हम लोगों ने भी कहा है कि गिलोय के लेने से लाभ होता है। हींग है, काली मिर्च है, गिलोय है, तेज पत्ता है, ये सब चीजों से दवाई नहीं है, इट कैन बी अ लेकिन सपोर्टिव मेडिसिन। नहीं, कभी भी नहीं, मैंने आपके टीवी चैनल पे दावा किया था कि कोई भी टेबलेट कोरोना को समाप्त कर देगी आयुर्वेद का, या उसको खाने के बाद कोरोनिल नहीं होगा। हम इसका सपोर्ट कभी किया नहीं। बिल्कुल, that is the point that I am making. So those claims were false. See, that is the point, and I want to now bring in Dr. Babu. Dr. Babu, do you feel that the biggest damage that was done, we are not getting into ridiculing Ayurveda or ridiculing allopathy, but all of this was done with business in mind, that you wanted to promote Ayurveda, a noble cause, but it should have stood on its own ground and not by ridiculing and making false claims. Actually, can I talk? Yes, Dr. Babu. Actually, my point is, they have been advertising for such a long time, and I am an ophthalmologist, and they have been advertising some eye drops which they claim is very effective in cataract, glaucoma, retinitis pigmentosa, diplopia, etc. As per Indian laws, it is Drugs and Magic Remedies Act and Drugs and Cosmetics Act, and the current Consumer Protection Act 2019, any drug, even if it is scientifically proven, scheduled drugs are prohibited from advertising. And Divya Pharmacy is advertising these drugs for such a long time, and even after committing to the Uttarakhand Drug Licensing Authority that they will not advertise again, they put an advertisement in all the national medias on July 10th again. Actually, that is my point. Even if it is modern scientific medicine, which has proven to be effective even after important studies, scientific studies, they cannot advertise it. And it is being violated again and again repeatedly by Divya Pharmacy. That is my point. That is the context of my RTI. And even after committing that, they will not advertise again. They are doing it again. That is my point, and it should not be allowed. And the damage already done by these sorts of misleading advertisement is immense. Okay. There is a way to tackle this issue, and they should withdraw the advertisement, and they should put another advertisement saying that whatever they have done was wrong. That is the context of my intervention as an RTA activist. Correct. Other things, actually, Honorable IMA President has elaborated on those issues. Thank you. Okay. Acharya Manish, I want to come to you now, and I want to ask you this question. Do you feel that the worst thing that Mr. Ramdev can do for Ayurveda is to give it, in the name of giving it, that space as far as medical science is concerned, build false hope in people?
there are certain things that Ayurveda can do and must be promoted, but then let the claims be realistic. And what Mr. Ramdev is doing is making unrealistic claims, even ridiculing the doctors who were the frontline soldiers in the corona war. सर मैं अपना जवाब ऐसे शुरू करूंगा कि सबसे पहले तो मैं इसको पेंडेमिक नहीं मानता, मैं इसको प्लैंडेमिक मानता हूं। ये पूरे प्लान के तहत पूरे वर्ल्ड में जो मेडिकल माफिया है, जिसको हम फार्मा माफिया बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के को साथ लेके चलता है, ये उस तरह का प्लान है। आप बताओ, बचपन से लेके आज तक क्या बुखार जुकाम खांसी नहीं होता था? बचपन से लेके हम बारिश के पानी में नहाते थे, बुखार जुकाम खांसी होता था, हम घर में ही काढ़ा पी के कोई ना कोई चूरन चटनियां लेके ठीक हो जाते थे। इसका कितना अरबों रुपए का कारोबार बना दिया गया, ये क्या बिना प्लानिंग के पॉसिबल है? पहले इसको अमेरिका खेल खेलता था, इस वाले कोरोना के टाइम पे इसको चाइना ने खेला है। तो ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी, कोई इसको खुल के बोलता नहीं है, लोग इसको पैंडेमिक बोलते हैं, मैं इसको वेरी फर्स्ट डे से प्लैंडेमिक बोलता हूं। अरे आचार्य मनीष जी, आप मुझे ये बताइए कि इस प्लान के चलते फिर वो सेकेंड वेव में जो लोग मरे ऐसे ही मर गए? उनका मन कर रहा था मरने का? सर रुको ना, 24 मई 2020 को पहली बार लैंसेट ने छापा था कि कॉम्बिनेशन की ड्रग्स दोगे तो लोग मरेंगे, और हर हॉस्पिटल में कॉम्बिनेशन की ड्रग्स दी गई हैं। आप कभी बताओ, आज तक पूरी दुनिया में 40 साल हो गए ट्रायल्स होते हुए, कभी भी कॉम्बिनेशन की ड्रग्स कामयाब नहीं हुई कि एंटीबायोटिक के साथ आप कोई दूसरी दवाई का कॉम्बो दो। हर हॉस्पिटल में पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आप बताओ, रेमडेसिविर पूरी दुनिया में कहीं कोई उस पे रिसर्च नहीं हुई कि वो काम करेगी, और लोगों ने ब्लैक में खरीदी। फिर लोग जो घर में मरे उनका क्या? ये तो अस्पताल की बात हो गई। नहीं सर, लोग घरों में नहीं मरे। मैं बताता हूँ लोग घरों में क्यों मरे, लैक ऑफ नॉलेज। मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में जानवर बीमार क्यों पड़ता है और कैसे ठीक होता है? वो हमें वो गाइडेंस चाहिए। आज भी आप अपने घर में डॉगी पाला होगा, वो बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो खाना छोड़ देता है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, घास खाता है, धूप सेकता है और ठीक हो जाता है। हमें कोई सही ट्रीटमेंट तो बता नहीं रहा। आचार्य मनीष, I hope you realize that while you say all these things, there will be a huge section of people who will listen to you and believe you and will then refuse to take any help in allopathic science, and that is where the problem is. मैं एलोपैथी को बुरा तो एक सेकंड के लिए नहीं बोला, लेकिन जो मेडिकल माफिया है, जो चाहता है जिंदगी भर गोली खाओ, ये कहाँ की साइंस है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके साथ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ ये बताओ, एलोपैथी में किसी एक बीमारी का नाम बताओ जिसका इलाज होता हो। आप ही पूछ लो सवाल, आपके साथ रिस्पेक्टेड डॉक्टर बैठे हैं। इलाज, मैं मैनेजमेंट नहीं पूछ रहा, इलाज पूछ रहा हूँ। शुगर तक का तो इलाज नहीं कर सकते। My whole point is, Acharya Manish, why has Baba Ramdev and डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये क्यों है कि हम लोगों ने एक एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा की लड़ाई शुरू कर दी है? सर मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूं, एलोपैथी की रॉन्ग प्रैक्टिस के अगेंस्ट हूं। एलोपैथी सही है, साइंस है, लेकिन एलोपैथी में जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट हूं ना, कि आप जिंदगी भर पेशेंट को दवाइयों पे डालो। अच्छा, आप पूछो उनसे कि आप हॉस्पिटल में जाते ही ग्लूकोज लगाते हो, सलाइन वाटर चढ़ाते हो, उसका कोई रिसर्च पेपर है कि उससे कोई फायदा होता हो? कहीं कोई मुझे पेपर तो दे दो ना, सबूत के ऊपर बात करेंगे ना। No, my point is, let's listen in to the experts. You have raised certain points. The IMA President, Dr. SP Singh, your response. Mr. मनीष, आप इतना बात बोल रहे हैं, सब गलत है, जिसका कोई रूट नहीं है। एलोपैथ में इलाज है, और एलोपैथ में ऐसा इलाज है जो आप समझते हैं। हमारा एलोपैथ, आप मुझे एक बीमारी का नाम बताओ जिसका इलाज होता हो, एक बीमारी का नाम बताओ। एलोपैथ में नहीं, ट्यूबरक्लोसिस जब हुआ तो इसका इलाज एलोपैथ ने निकाला, आपके हेमोपैथ आयुर्वेद में नहीं निकला। और आज भी ट्यूबरक्लोसिस एलोपैथ से ही ठीक हो रहा है। मेरे को 10 पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के दे दो और 10 पेशेंट आप ले लो। ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में बाद में टीबी एमडीआर में कन्वर्ट होती है। हमने नहीं, वो सब तो आप नेगेटिव बात कर रहे हो ना सर। आप नेगेटिव बात नहीं कर रहे हो, हमारा सप्रेशन पे चलते हो। आप बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ाने की बात ही नहीं करते हो, इम्यूनिटी की बात ही नहीं करते हो, आप तो दबाने की बात कर रहे हो। बच्चा, अरे बाप, तो हीलिंग नहीं, आप आयुर्वेद से खिलाफ नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में जो इलाज है उसका सीमित है। इलाज में उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीड्योर नहीं है, उसमें टेम्पोरली है, हमारा एलोपैथ।
सर जो सुश्रुत ऋषि थे वो धनवंतरी का बात आप भूल जाइए ना। अभी जो एलोपैथ में इलाज हो रहा है सर, अरे हमारे भगवान, हम भी उनको भगवान मानते हैं। आप तो गलत बात बोल रहे हैं मनीष जी। मुझे बताओ कि एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है, तो हम कहेंगे आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है। आज ये नहीं बोल रहा इलाज नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे एक बीमारी का नाम बताओ जिसका एलोपैथी दवाई से इलाज होता हो। We have pitted two forms of medical देखिए science against आज one another. पेशेंट को आप मेंटेन करते हो, मेंटेनेंस आप करते हो, ऐसा है मनीष जी यदि पेशेंट को लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग होता है, आपके आयुर्वेद होम्योपैथ में इमीडिएट रिलीफ नहीं है। इमीडिएट रिलीफ एलोपैथ सर, आप लूज मोशन को रोकने की बात करते हो। लूज मोशन बॉडी के भले के लिए है, वो बॉडी का गंद निकल रहा है, उसमें हीरे मोती नहीं निकल रहे जो उसको रोकना है मुझे। सर आपको नहीं आपको नॉलेज की बहुत कमी है मनीष जी। गंद रोकने की नहीं है, बैसिलरी डिसेंट्री होता है। 140 क्लिनिक है मेरे, 6 हॉस्पिटल है मेरे खुद के। रोज के 1000 पेशेंट से सर आप जिस मनीष जी आप जिससे बात कर रहे हो 100 सुपर डेली पेशेंट देखता है और मेरा सब पेशेंट ठीक होता है। मैं आपसे एक आयुर्वेद को आप मुझे बताओ, किडनी अगर किसी की खराब हो जाए तो आप लोग क्या करते हो? आप किडनी खराब हो जाए क्या करते हो? किडनी में हम लोग उसको आदि उसका किडनी खराब हो जाता है तो उसका दवा दिया जाता है, उसको हम लोग डायलिसिस करते हैं ज्यादा खराब होने पर, और पेशेंट ठीक होता है। उसका हम लोग आज तक एक पेशेंट भी ठीक नहीं हुआ सर। एक सिंगल I have to come in here. The point is this is और नहीं ठीक हुआ तो नहीं हमको बताइए। ऐसा है आचार्य मनीष जी, सारी क्या बीमारी का इलाज यहाँ टीवी पे नहीं हो पाएगा। You can connect offline. आप सारी बीमारी एक एक करके बताएंगे। This is going to be very difficult. आप मनीष जी आप बेकार का बहस करते हो। किडनी का पेशेंट आज जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, कोरोनरी रेनल फेल्योर हो गया, पेशेंट बचता है और 10 सालों तक कोई दिक्कत नहीं होती है, दवा खाना पड़ता है। आपके आयुर्वेद में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। अभी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी का पेशेंट 10 साल। Okay, my point is, Dinesh Upadhyay, I want to come to you now. One moment, Dinesh Upadhyay, I want to come to you now, and we can have a larger debate on the merits of Ayurveda and the demerits of allopathy. And obviously in this country, I feel a very informed debate is required. बहुत ज़रूरत है लोगों को ये पता होना कि किस चीज़ के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं दिनेश जी, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त किसी एक मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाने के लिए या धंधा आगे बढ़ाने के लिए कोई झूठा दावा करना वो गलत है? और अब तो ये बात सीधा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट, वरना ये मामला जाता ही क्यों सुप्रीम कोर्ट? ऐसा नहीं ऐसा देखो, मेरी बात सुनो। ये राष्ट्र बहुत अच्छा राष्ट्र है हमारा, इसमें सबकी बात सुनी जाती है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इसी मंत्रालय ने, भारत सरकार ने आयुर्वेद के चिकित्सकों को 56 प्रकार के ऑपरेशन करने का अधिकार दिए। और कोरोना के काल के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद, योगा और कपालभाति वगैरह का जो पूरी दुनिया ने प्रचार प्रसार किया है, उसको अपने आप किया भी है, मूल रूप में लेकर के भी आए हैं। बिल्कुल यही चीज सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है। आई होप यू नो किसी पैथी की द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग द सेम थिंग। देखो दे आर सेइंग पॉपुलराइज योगा बट डोंट क्रिटिसाइज मॉडर्न मेडिसिन। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी भी पैथी के बारे में बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। और हम सब लोग सभी पैथियों का, सभी इंसान का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। लेकिन मर्यादा पार करके किसी की भी व्यक्ति की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। मर्यादा के अंदर रह करके अपनी बात करनी चाहिए। और पैथी का जो भी विषय है, ये एलोपैथी में को बुरी पैथी नहीं है। लेकिन क्या है, मैं आपको एक बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अभी जो बहस चल रही थी इसमें, उससे हट करके हमें मूल जड़ के ऊपर के चलना चाहिए कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा हो जाएगा, सभी लोग योग करें, हम लोग अपने खाने के ऊपर और अपना जीवन के ऊपर थोड़ा सा परिवर्तन करें तो शायद बीमारी होने का मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा, सभी को, सभी की पैथी का सम्मान करना चाहिए, सभी डिग्रियों का सम्मान करना चाहिए। भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सभी को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करने से अच्छा है
कि उसमें सुधार किया जाए कि मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं I've हो गई, completely मुझसे कहीं run कोई out of चूक तो time. नहीं हो गई। Last comment by the IMA president, Dr. SP Singh, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, now the Supreme Court has said that the center must give a reply that Patanjali, which is the firm of Mr. Ramdev, that must also reply on misleading advertisements and the claims that have been made. आपको लगता है कि अब ये जो लड़ाई है जो छेड़ी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ही ठीक कर सकती है? A healthy debate is fine, कोर्ट का वर्डिक्ट को but an ugly debate around medicine is not fine. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का सम्मान करना चाहिए, इसमें सबको मानना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो जो भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट वर्डिक्ट दिया है कि किसी भी पैथी का आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप योगा है तो योगा कराइए, लेकिन एलोपैथ में भी जो भी ट्रीटमेंट है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलराइज ट्रीटमेंट है और इसकी हम लोग इज्जत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस डिस्कशन। आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टू हैव हैड एंड अ हेल्दी डिस्कशन अराउंड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस इज गुड, but to use it for commercial gains, advertisement, money, profit, either way is wrong. And do you also feel like us that now only the Supreme Court can fix this? Otherwise people will stop trusting anything. Good night and good day.